You always look nice. Okay. So once again, what a joy it is to welcome all of you. Hello, Pastor Khalid. Here? Yes. Once again, it's a great joy to welcome all of you. दोबारा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आप सबों का खैर मकदम करूं. And we are going to start New Testament survey. और आज हम नए ऐदनामा का शुरुआत किए जाते हैं. And Brother Keith has planned everything all the way to December. और भाई कीत ने सारी स्टडी को तैयार कर लिया है और वो दिसंबर तक नए ऐदनामा की तालीम देंगे. And what's going on here? Somebody is, I think, trying to log in. Okay, let's see. But everybody can hear you, I think. Okay, thank you. So today we are going to cover 4 gospel, and then we are going to give you the plan for this year all the way to December. आज हम 4 अनाजील का मुताला करेंगे और बादज़ां दिसंबर तक के लिए सारा आपको प्लान दे दिया जाएगा. So let's have a word of prayer and then we start. आए हम दुआ करें और उसके साथ शुरू करें. Thank you, Father, for your word. आए बाप तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो. We thank you for the power of your word. और तेरे कलाम में जो कुव्वत और कुदरत है उसके लिए भी तेरा शुक्र हो. We thank you for the truth of your word. तेरे कलाम में जो सच्चाई है और तेरा कलाम जो सच्चाई है उसके लिए भी तेरा शुक्र हो. Your word says you shall know the truth and the truth will set you free. तेरा कलाम फरमाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. Once again, we pray for your servant who is going to teach your word. ऐ खुदावंद तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं जो आज तेरे कलाम की तालीम देगा. Bless him more and more. अपने खादम मुअल्लम को बहुत बरकत दे. Bless Brother Khalid who is going to interpret. तर्जमान को भी बरकत दे. Bless each and every one of us. और तमाम जो सुनने वाले हैं उन सबों को बरकत दे. Remove all kind of heaviness and bring joy and gladness. हर तरह का दबाव तू दूर कर, खुशी और शादमानी बख्श. We come against all kind of pressure. Your people are having some sort of pressure somewhere. न किसी जगह से या किसी न किसी तरह का कोई दबाव जो तेरे लोगों के ऊपर है, हम दुआ करते हैं अपने लोगों को उससे आजाद कर दे. We commit everything in your mighty hand. और तेरे हाथों में सारी चीजों को दे देते हैं. We pray for the full control of the Holy Spirit. और रूल कुस का मुकम्मल कंट्रोल मांग लेते हैं. Let your name be glorified. ताकि तेरा नाम जलाल पाए. Let souls be touched. ताकि रूहें छुई जाएं. Let souls be revived. और रूहों refreshed. में नई जिंदगी और ताजगी आए. Bodies be healed. और बदनों में तेरी शिफा आए. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं. Amen. आमीन. Reverend Keith, God bless you. Thank you. And Thank Brother you. Khalid. Thank you. You. Well, hello everybody. Good to be here again. हेलो. दोबारा आपके सामने आकर शादमानी और खुशी हो रही है. It's very exciting to look at the New Testament. बहुत पुरजोश
नए ऐदनामा को देखना है। Now we're going to start with Matthew. हम शुरुआत पहली इंजील मुकद्दस मत्ती can't- से करेंगे। We can't go into too much detail, but just to give you an overview. हम बहुत ज्यादा तफसीलात तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक खाका जरूर आपको देंगे, एक पस मंजर बयान करेंगे। The main message of Matthew is that the Lord Jesus has fulfilled prophecy. और जो बुनियादी और मरकजी मजमून मत्ती की इंजील का वो ये है कि यीशु मसीह ने तमाम नबुव्वतों को मुकम्मल किया है, उनकी तकमील की है। It says in Matthew chapter 1 verse 22, all this took place to bring about what the Lord had said would happen. He said it through the prophet. Matthew 1:22. पहले बाब की 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि इसलिए जो नबी की मार्फत फरमाया गया था, मैथ्यू 1:22, और जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। And here's a question for you to think about. Why और ये सवाल है आपके सोचने के लिए। 4 gospels, not just one? और सोचते आप भी होंगे कि 4 अनाजील क्यों हैं, 4 की बजाय एक इंजील क्यों नहीं? Why Matthew, Mark, Luke and John? क्यों 4 अनाजील, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना? Now the answer is easy, but it just makes you think, why? जो इसका जवाब है वो तो आसान है, लेकिन जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों। Let me just tell you a little story which will help you understand it, I hope. एक मैं आपको वाक्या और कहानी बताता हूं, शायद ये आपकी मदद करे कि इस नुक्ते को आप समझ पाएं। Some years ago, I was a missionary in Africa, in Malawi. कुछ साल हुए मैं मलावी, अफ्रीका के मुल्क में मिशनरी था। And we used to find a little bit of support for church planters. और थोड़ी बहुत हमें कहीं से मदद आती थी चर्च प्लांटर्स की मदद के, उनकी खिदमत के लिए। And the mission I worked with, they liked me to send photographs so they could see who they were praying for and supporting. और फिर वो लोग जो मदद करते थे वो तवक्को करते थे कि कुछ तस्वीरें भेजी जाएं ताकि उन्हें पता चले कि किन लोगों की मदद हो रही है। And I had a good man, good African man who came to see me, and I said, we can help you, but I need some photographs. एक अफ्रीकन भाई आया और मैंने उसे कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद करें तो खुदा के खादम हमें आपकी तस्वीर चाहिए ताकि हम अपने लोगों को भेज सके जो मदद करते हैं। And I said, we need some photographs from different sides or different viewpoints. और मैंने उसे ये कहा कि अपनी जो तस्वीर है वो अपने मुख्तलिफ साइड्स से वो तस्वीरें जो हैं वो भेजना। And he came back in about a week later with 4 very good photographs. और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद 4 बहुत अच्छी तस्वीरें वो लेके मेरे पास आया। He had one of his face. जो एक तस्वीर थी वो सीधा उसका चेहरा नजर आ रहा था। One of the left hand side. और एक तस्वीर से उसका जो बायां बाजू या बाईं जानब थी वो नजर आ रही थी। One of the right hand side. और फिर एक तस्वीर जो थी उससे उसका जो दायां जो जानिब है वो नजर आ रहा था। Then he showed me he had a photograph of the back of his head. और फिर उसने एक ये तस्वीर दिखाई जो उसके पीछे, सर के पीछे की एक तस्वीर थी। And I'm afraid I couldn't stop laughing. और जब मैंने उसके पीछे की तस्वीर देखी, उसके कंधों से बैक की तस्वीर देखी तो मैं तो हंसना बंद ना कर सका। And he started laughing. We all started laughing. और जब मैं हंसने लगा वो भी हंसने लगा और हम जितने बैठे थे सारे हंसने लगे। So I don't think the supporters needed the photo of the back of his head. वो लोग जिन्होंने मदद करनी थी
उनको कोई परवाह नहीं थी, कोई नहीं चाहते थे कि उसके पीछे की भी तस्वीर उनको मिले. But he wanted to keep the photo because he said, you know, I can put it on my wall at home. कहने लगा कि ये तस्वीर चलो मुझे दे दो, मैं अपने घर में अपनी दीवार सजा लूंगा इस तस्वीर अपनी से. But this helps us understand the four gospels. लेकिन इससे जो 4 अनाजील हैं उसको समझना आसान हो सकता है. We see Jesus from different angles, different viewpoints. हम मुख्तलिफ जावियों से मसीह को इन अनाजील में देखते हैं. Matthew shows us that Jesus is the Messiah. और मत्ती ये जाहिर करता है, ये दिखाता है कि यीशु मसीहा है. He's the King of the Jews. और वो यहूदियों का बादशाह है. And it shows that his family line is from Abraham and from David. और उसका नस्बनामा वो अब्राहम और दाऊद से वो शुरू करता है. I heard about one Jewish man who read the whole list of the family line of Jesus, and he thought, well, I want to be a Christian because Jesus was a genuine Jew. एक यहूदी के बारे मैंने सुना कि उसने ये नस्बनामा जो मत्ती में है उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगा है मुझे तो पता ही नहीं था कि यीशु मसीह तो वाकई एक यहूदी है, और अगर वो वाकई एक यहूदी है तो मैं उसकी पैरवी करना चाहता हूँ. Now, each gospel, or gospel means good news, each gospel has a particular message. और हर जो इंजील है उसमें एक खसूसी पैगाम पाया जाता है. And each one shows a different view of Christ. और हर अनाजील का मुसन्नफ मसीह की जात का एक खसूसी पस मंजर और जाविये से अहाता करता है. So Matthew wrote to the Jewish people. मत्ती ने यहूदी लोगों के लिए अपनी इंजील को तालीफ और तसनीफ उसकी की. He wanted his own Jewish people to realize that Jesus was really the Messiah, the promised King. और वो चाहता था कि उसकी यहूदी कौम को ये पता चल जाए कि यीशु मसीह वो बादशाह था जिसका वादा किया गया था. The savior of the Jews, but also of the whole world. यहूदियों का निजात दहिंदा और सारी दुनिया का निजात दहिंदा. The word Messiah just means the anointed one. और लफ्ज मसीहा उसका मतलब है मसा किया हुआ. In Greek, the word was just Christ. और जो यूनानी ज़बान में है वो सिर्फ मसीह. And the Jews were waiting for the Messiah to come. और यहूदी तो मुंतजिर थे कि उनका मसीहा आए. But they thought Messiah would come and drive out the Romans. लेकिन उनके ख्याल इन बातों से मगलूब थे कि जब मसीहा आएगा तो रोमी हुकूमत को बाहर निकाल फेंकेगा. They didn't understand that there were two comings of Christ, the first and second coming. उनको ये समझ नहीं आई कि मसीहा के दो उसकी आमद होंगी, एक पहली आमद और फिर उसकी दूसरी आमद. Matthew wrote about AD 60. मत्ती ने तकरीबन बाद 60 बाद मसीह इंजील लिखी. He'd been one of the disciples of Jesus. और वो यीशु मसीह का एक शागिर्द था. He started out as a tax collector. और उसने अपनी जिंदगी का करियर का शुरुआत एक टैक्स कलेक्टर से किया. And you can tell by his writings that it's very orderly. और आप देख सकते हैं कि चूंकि महसूल लेने वाला था तो उसने टैक्स लेने वाले की तरह बहुत तरतीब के साथ इंजील तहरीर की. And he wanted them to understand that this was the first coming of Jesus that had just happened. और वो बताना ये चाहता था
कि ये जो मसीह की आमद है ये असल में पहली आमद है। That Jesus had come to set people free from sin and death and Satan. कि यीशु मसीह पहली आमद में लोगों को शैतान, गुनाह, इब्लीस से आजाद करने के लिए आया। But he's coming again as King of Kings and Lord of Lords. लेकिन बादशाह अपनी दूसरी आमद में वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों के बादशाह के तौर पर आएगा। Now, Matthew's Gospel is a wonderful book to read. जो मत्ती की इंजील है ये हकीकी ऐसी इंजील है जो पढ़ने के काबिल है। He writes about the Sermon on the Mount. वो जो पहाड़ी वाज है उसका जिक्र करता है। That's in Matthew chapter 5 to chapter 7. और ये मत्ती 5वें बाब से 7वें बाब तक हम पढ़ते हैं। And the first word of the sermon is happy are the poor in spirit, happy. और जो पहला लफ्ज 5वें बाब की पहली आयत में शुरू ही करता है उन मुबारकबादियों का, वो शुरू करता है मुबारक है वो जो दिल के गमगीन हैं। Billy Graham, a great preacher, wrote a book called The Secret of Happiness. जो बिली ग्रैहम दुनिया का अजीम तरीन खादम, उसने एक किताब तसनीफ की और वो किताब इस उन्वान से थी खुशी शादमानी का भेद। And it was based upon the Sermon on the Mount. और उसने जो पहाड़ी वाज है उसको बुनियाद बनाया खुश जिंदगी के लिए। I think the Sermon on the Mount is the greatest sermon that's ever been preached. और मैं सोचता हूं कि पहाड़ी वाज एक ऐसा वाज है जो अपनी नौयत का है और इस तरह का कभी कोई वाज नहीं दिया by the world's greatest preacher. दुनिया में बहुत से मनाद और वाइजीन हैं। It teaches about our inner life. लेकिन ये पहाड़ी वाज हमारी बातनी जिंदगी का तज़किरा करता है। The gospel changes people inside. जो अंजील मुकद्दस है वो लोगों को बातनी तौर पर तब्दील करती है। Moses' law was to do with outward behavior. और जो मूसा की शरीयत थी वो बैरूनी तौर पर लोगों को उनके बर्ताव और उनके तौर तरीकों से आजाद करती थी। But Jesus comes to make us new people inside. लेकिन यीशु आया ताकि हमें नए लोग लेकिन अंदर से तब्दील करके नए लोग बनाए। Jesus says, happy are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। When we realize we are nothing, जब हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हम कुछ नहीं, we get new life from God when we know we're nothing. जब हमें ये अंदाजा हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं तो मसीह से नई जिंदगी हमें मिल जाती है। It says in Matthew chapter 5 verse 8, happy are the pure in heart, for they shall see God. और फिर 8वीं आयत में पढ़ते हैं मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। When Jesus got baptized by John the Baptist, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, John the Baptist said, he'll baptize you with the Holy Spirit and with fire. तो यीशु मसीह के बारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। And that word baptized, it's the word they used if a ship sank under the water. और जो लफ्ज बपतिस्मा है असल में ये वो लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे जब कोई बैरी जहाज पानी में डूब जाता था। So Jesus came to get rid of the old life and give us new life. और यीशु मसीह आया ताकि हमें पुरानी जिंदगी से आजाद करके नई जिंदगी हमारे अंदर भर दे और उसका शुरुआत करे।
the big message today is we can be filled with God. और बहुत बड़ा पैगाम इंजील का ये है कि हम खुदा से भर सकते हैं. This is the greatest thing in all the world. सारी दुनिया में सबसे बड़ा मुकाशफा और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई खुदा के जाते इलाही से भर जाए. We can know that Jesus is our Lord and our Savior and our King. और हमें ये पता चल जाए कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद और हमारा बादशाह है. And that's what Matthew discovered. और यही दरियाफ्त मत्ती ने ये किया. It says in Matthew, ask and it shall be given you. और मत्ती ही में हम पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. Now, you can read it for yourselves, but it's full of prophecies which are answered. आप खुद पढ़ सकते हैं इंजील को, लेकिन आप देखेंगे कि इस इंजील में ऐसी बहुत सी नबूवतें हैं जिसकी तकमील हमें नजर आती है. Now we're going to go straight on to Mark's Gospel. अब फौरन सीधा हम मरकस की इंजील तक जाएंगे. And you'll find some of the things in Matthew are the same as in Mark. और आप देखेंगे कि मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में भी कुछ बातें मुश्तरक हैं मत्ती की तरह. But he's got a different viewpoint. लेकिन मरकस ने जो जाविया खींचा, जिस जाविये से मरकस ने अपनी इंजील तसनीफ की, वो जरा फर्क है. Mark shows Jesus as the servant. और मरकस यीशु मसीह को बहसियत खादम, खिदमत करने वाला जाहिर करता है और पेश करता है. He's the hard working servant. और ऐसा खिदमत करने वाला जो मेहनती खिदमत करने वाला है. Jesus is always active, doing good. और यीशु मसीह हमेशा पुरजोश और मसरूफ और भलाई के काम करते. It's all about action and helping people. मरकस की इंजील हमें दिखाई देती है हमेशा कुछ ना कुछ मसीह करते रहते, लोगों की मदद करते. The Romans would have liked that. और रोमी लोगों को ये अच्छा लगता क्योंकि वो मेहनत करना पसंद करने वाले लोग थे. It says in Mark chapter 10 verse 45, he came to serve and give himself as a ransom for many. Mark 10 verse 45. मरकस की इंजील 10वां बाब उसकी 45वें आयत में लिखा है कि वो बहुतों के लिए अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया. In this gospel you see miracle after miracle after miracle. और इस इंजील में एक खसूसी बात आप हमें पढ़ते हैं, नजर आती है, मोजजात के बाद दूसरा मोजजा, दूसरे मोजजे के बाद दूसरा मोजजा, मोजजे के बाद मोजजा नजर आता है. You find a miracle happens and then might be a little bit of talking and then another miracle and another miracle. आप पढ़ते हैं और देखते हैं कि जरा सी कोई और बात की गई और उसके बाद फिर मोजजा, थोड़ी सी कोई और बात की गई और उसके बाद फिर मोजजा हमें दिखाई देता है मरकस की इंजील में. There's very few parables but a lot of miracles. इसमें जो तमासील हैं वो तो बहुत कम, लेकिन मोजजात बहुत ज्यादा हैं. The key word in Mark is action. और जो कुलीदी लफ्ज मरकस की इंजील में है वो है काम करो. For example, he has 19 miracles happening one after the other. वो 19 मोजज़ों का जिक्र करता है जो एक के बाद दूसरा हुआ. And Mark picks out special events which are going on, special actions which are taking place. और खास तौर पर उन कामों का जिक्र करता है जो खसूसी तौर पे मसीह ने की है. Mark uses the word immediately, straight away, now. और मरकस ये लफ्ज इस्तेमाल करता है फौरन, अब. Most people, most Bible teachers believe that Mark was the first story or account of Jesus that was written.
बहुत से इल्म इलाही के माहिरीन का ये ख्याल है कि मरकस की इंजील वो इंजील है जो सबसे पहले तहरीर हुई। They think it might have been written from Rome during a time of persecution. और उनका ख्याल ये है कि शायद रोम ही में ये लिखी गई वो वक्त जब अजियत कलीसिया की इज़ार सानी का वक्त था। That might be why it seems quite short. और इसी वजह से शायद हो सकता है कि ये मरकस की इंजील जरा छोटी है। And it seems very urgent. और इसमें हमें हसूसी तौर पर नजर आता है कि कुछ बहुत जरूरी। So we see Jesus as the man of action. और मरकस की इंजील में हमें नजर आता है कि यीशु मर्दे अमल थे और हमेशा अमल करने के लिए, काम के लिए तैयार रहते। He can control nature. और यीशु सी ऐसे मर्दे मोजजा और मर्दे अमल थे जो फितरत को भी कंट्रोल कर सकते थे। He can overcome the power of Satan. और शैतानी कुव्वतों पे गालिब आते। Some people believe that a lot of what Mark wrote he got from the apostle Peter. बहुत से लोगों का ख्याल है कि बहुत कुछ जो मरकस ने लिखा वो असल में उसने पतरस रसूल से लिया। Some people have called it the Gospel of Peter. कुछ लोग तो मरकस की इंजील को पतरस की इंजील भी इसी वजह से कहते हैं कि ये तो सब कुछ ऐसे लगता है कि पतरस ही ने लिखा। It's exciting, it's enthusiastic. इसमें वलवला है, इस इंजील में जोश पाया जाता है। It's very straightforward. और ये बहुत सीधी है। And this is what Peter was like. और पतरस की जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह की थी। And it might be that Mark was with Peter और ये भी हो सकता है कि मरकस रोम में पतरस के साथ रहता था। And he might have been listening to Peter preach and tell these stories. और वो सुनता था जब पतरस कलाम की मनादी करता और उन वाक्यात का जिक्र करता। In fact, Mark might have been like a spiritual son of Peter. और ये भी हो सकता है, लगता है कि मरकस पतरस का एक रूहानी बेटा हो। And if this is so, it will help us understand a little bit about Peter's character. और इससे हमें जो पतरस का किरदार है वो भी नजर आता है। Because the Holy Spirit changed Peter's life so powerfully. क्योंकि रूल कुस ने पतरस की जिंदगी को बहुत जोर के साथ बदल दिया। In Mark's gospel, you find that Peter was rebuked, or the Lord had to speak sternly to him at times. मरकस ही की इंजील में हम पतरस के बारे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कई दफा तो बहुत सख्ती के साथ उसको झिड़का। And Mark writes about this in his gospel. और मरकस अपनी इंजील में उसका तज़किरा करता है। But there were other times when Jesus really praised Mark. लेकिन ये भी हम पढ़ते हैं मरकस की इंजील में जब यीशु मसीह दुआ करने जाते। But when he praised Mark, when he praised Peter, Mark ये भी doesn't write about that. लेकिन हम मरकस की इंजील में ये भी पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने पतरस की तारीफ भी की। And it और may उसने be, ये भी लिखा कि कैसे यीशु मसीह ने खुद तारीफ की। It may be that Peter said, don't put the good things in about me, just write about my failures. हो सकता है कि पतरस ने ये कहा मेरे बारे अच्छी बातें लिखने की जरूरत नहीं, जो मेरी नाकामियां थी उसका जिक्र अपनी इंजील में जरूर करना। You see, Peter's life had so changed that he was now a humble servant like his master. और पतरस की जिंदगी तो बिल्कुल बदल गई और वो बिल्कुल खादम की सूरत अपने उस्ताद की शक्ल बन गया। Mark shows the Lord Jesus as
a suffering servant. और मरकस जिक्र करता है मसीह के ताल्लुक से कि वो दुख उठाने वाला खादम है. In Mark chapter 10, verse 45. और मरकस 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत में हम पढ़ते हैं. It said, the Son of Man didn't come to be served. और यहां पर हम पढ़ते हैं कि वो खिदमत करवाने नहीं आया. इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं आया. He came to serve others. बल्कि दूसरों की खिदमत करने के लिए आया. He came to give his life to set people free. और बोतेरों के लिए अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया. Now in Matthew we saw Jesus as the king. हम मत्ती में तो हमने देखा था कि यीशु मसीह बादशाह है. Now isn't this amazing? In Mark we see Jesus as a servant. और मरकस में हम यीशु मसीह को बहसियत खादम हम देखते हैं. So you could call him the servant king. और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो बादशाह लेकिन खिदमत के लिए आया. The one that Isaiah wrote about in Isaiah chapter 53. और यसाया ने अपने 53 बाब में मसीह का तज़किरा इसी तरह से किया कि वो खिदमत करने के लिए आएगा, खादम होकर आएगा. The one who suffers to save people. जो खुद दुख उठाकर लोगों को निजात देगा. Another interesting thing is we believe Mark was the first story about Jesus to be written. और हमारा यकीन शायद है कि मरकस की इंजील सबसे पहले तहरीर हुई. But why do we put Matthew as the first gospel in the New Testament? लेकिन नए ऐदनामा में मत्ती की इंजील को पहली इंजील के तौर पर क्यों तहरीर किया गया? Well, the reason उसको रखा गया. The reason is Matthew is like a bridge between the Old and the New Testament. वजह यह है कि मत्ती सबसे पहले इसलिए आया क्योंकि वो पुराने और नए ऐदनामा में एक पुल की सूरत में उसकी इंजील है. Because Matthew is showing how really Jesus is fulfilling the Old Testament. It's a bridge. क्योंकि मत्ती ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि कैसे यीशु मसीह ने पुराने ऐदनामा की तमाम उन नबूवतों की अपनी जिंदगी में तामील की. But some of the great things that you read about in Mark also appear in Matthew and in Luke's gospel. और कुछ बातें जो मरकस में लिखी गई उनका जिक्र हम मत्ती और लूका में भी पढ़ते हैं. There are many good lessons we can learn from this gospel. और मरकस की इंजील से हम बहुत से अच्छे बहुत अहम सबक हम सीख सकते. It's a great picture of Christian leadership. क्योंकि मसीही जिंदगी के लिए ये बहुत एक मसीही लीडर के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है. Would you like to be a leader? अगर आप मसीही कायद होना चाहते हैं, Do you know what the secret of being a leader is? तो मसीही कायद का जो भेद है वो ये है. It's having a servant heart. मसीही कायद खिदमत करने वाला होता है, खिदमत करवाने वाला नहीं. Whether it's in your family or church or anywhere, a servant heart. अपना घर हो, कलीसिया हो, कहीं भी हो, मसीही कायद खिदमत करने वाला होता है. Paul writes in Philippians that Jesus just humbled himself. फिलिपियों में पौलुस रसूल इसका जिक्र करता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को ताबे कर दिया. He left heaven and became a servant. उसने आसमान छोड़ा और वो खादम की सूरत उसने इख्तियार की. What an example for us to follow.
कैसी प्यारी मिसाल है जो हमें फॉलो करना जरूरी है. Someone said this, that when you read in Mark about the ministry of Jesus, it's very quick. किसी ने कहा है कि जब हम यीशु मसीह की जिंदगी को मरकस में पढ़ते हैं तो नजर आता है बहुत जल्दी हमें इसमें नजर आती है. He tells a story of the 3 years of Jesus' ministry on earth. और जमीन के ऊपर मसीह की खिदमत के 3 सालों का वो अहाता करता है. Someone said it's like an express train. किसी ने ये कहा है कि मरकस की इंजील एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी की तरह है, तेज रो गाड़ी. To begin with, it's going very, very fast. ऐसी गाड़ी जो बहुत तेजी के साथ चल रही हो. But after 2.5 years, the train starts to slow down. लेकिन 2 साल के बाद यही गाड़ी जो है वो जरा आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है. For the last 6 months, it goes from years to months to weeks. और जो आखिरी 6 महीने हैं उसमें महीनों और फिर हफ्तों का जिक्र हम पढ़ते हैं. And then it slows down and it comes to the cross. और आहिस्ता आहिस्ता सलीब की जानिब ये इंजील बढ़ती है. But then the resurrection follows. लेकिन उसके फौरन बाद मसीह के जी उठने का तज़किरा हम पढ़ते हैं. Here's a very simple outline of Mark. और मरकस की इंजील का जो खाका है वो बहुत आसान है. In chapter 1, we see the beginning of Jesus' ministry. और पहले बाब में यीशु मसीह की खिदमत का हम शुरुआत पढ़ते हैं. In chapter 2 to 10, it's his public ministry. और दूसरे बाब से 10वें बाब तक यीशु मसीह की अवामी खिदमत का जिक्र हम पढ़ते हैं. But then from chapter 11 to the end, the train is slowing down. और फिर 11वें बाब से 16वें बाब तक यही जो ट्रेन है ये रुकना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है. He's going to Jerusalem to the cross. और फिर यरूशलेम से गुजरती सलीब की जानिब बढ़ती है. So if we just to give a little summary, we could say that Mark shows the good news of Jesus. और अगर इख्तिसार के साथ मरकस की इंजील को बयान करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मरकस की इंजील He's got power over sickness, disease and devils. कि यीशु मसीह शैतान, इब्लीस, बदरूहों सब पर गालिब आया. He's got power over nature. और यीशु मसीह जो फितरती दुनिया है उसके ऊपर भी गालिब आया. Even the wind and the waves have to obey him. जो हवा और लहरें थीं उस पर भी मसीह का इख्तियार था, उसका कंट्रोल था. And Mark is writing to believers who are being persecuted. और मरकस उन ईमानदारों को लिख रहा है जो इज़ा रसानी से गुजर रहे थे. And he tells of the Lord who shares their sufferings. और उन लोगों को यीशु के बारे बताता है जो जिसने दुख उठाया अपने लोगों के लिए. He's a suffering servant, but he's also the glorious Son of God. वो दुख उठाने वाला खादम लेकिन जलाली खुदा का बेटा भी है. It's a great book to give to someone who's searching about the Christian faith. अगर कोई मसीही ईमान का मुतलाशी हो तो उसको ये इंजील देना बहुत अच्छा है. It's power packed. क्योंकि इसमें बहुत मसीह की कुदरत का तज़किरा है. It's as easy to read as the newspaper. ये बिल्कुल अखबार की तरह है, आराम से इसको पढ़ा जा सकता है. Just 16 chapters full of action. 16 बाब जो अमली जिंदगी से भरे पड़े हैं.
I hope I've encouraged you to read it and read it and read it. और मेरा ख्याल है कि मैं आपको हौसला देने में कामयाब हो गया हूं ताकि आप उसको पढ़ें और खूब इस इंजील को पढ़ें. Oh, what a great book. कैसी जबरदस्त ये इंजील है. And then now we are up to Luke. और अब हम लूका की इंजील तक पहुंचते हैं. Are we okay to keep going? Yeah. क्या हम जारी रखें? Yeah. Yeah. Okay, now Luke, he was writing to the rest of the world, the non-Jewish world. अब जो लूका इंजील लिख रहा है वो गैर यहूदी, यूनानियों और गैर अक़वाम के लिए ये इंजील तहरीर कर रहा है. The people they would call Gentiles. उन लोगों के लिए जिनको गैर अक़वाम कहा जाता था. Or they call them Greeks in the Bible. या बाइबल मुकद्दस में उन्हें यूनानी भी कहा जाता था. Now Luke explains a lot of the Jewish customs because it's to non-Jewish people. लूका गैर यहूदी लोगों को और गैर यहूदी लोगों के जो रस्मो रवाज हैं उनका जिक्र करता है. He presents Jesus as the perfect man. और वो ये जाहिर गैर यहूदी लोगों यूनानियों को जाहिर करता है कि यीशु मसीह कामिल इंसान है. People from that Greek background, they were looking for a perfect man. वजह ये थी कि यूनानी लोग कामिल इंसान के मुतलाशी थे. And Luke talks about Jesus as the Son of Man. और लूका जाहिर करता है कि यीशु इब्ने आदम. Now Luke is a wonderful book, a wonderful book. अब जो लूका की इंजील है वो बड़ी जबरदस्त इंजील है. Luke begins with a joyful celebration. और लूका तो शुरुआत ही खुशियों के साथ, जश्न के साथ करता है. When you read Luke, you find joy and gladness right through the book. सारी इंजील में हम खुशी की खबर, जो खुशी है उसको हम पढ़ते हैं. In the beginning, Mary sees an angel. शुरू में हम पढ़ते हैं कि मरियम ने फरिश्ता देखा. And she starts to sing praises to God. और खुदा की तमजीद करने लगी. Maybe if we read Luke, we'll start singing praises to God. और अगर हम भी लूका की इंजील पढ़ने लग जाएं तो हम भी खुदा की तमजीद में मशगूल हो जाएंगे. Zechariah, the father of John the Baptist, after he's been silent for 9 months, he starts giving thanks to God. और ज़िक्रिया काहिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप है, 9 महीने उसकी जुबान बंद रही और जब जुबान खुली तो एकदम उसने तमजीद और प्रस्त शुरू कर दी. Even John the Baptist, when he's still in the womb of his mother, Elizabeth, he starts kicking for joy. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी माँ के बतन ही में था तो बतन ही में उसने उछलना खुशी के साथ शुरू कर दिया. When Jesus is born in Bethlehem, the sky fills with angels singing. और जब यीशु सी बैतलहम में पैदा हुआ तो फरिश्तों की एक फौज हम्द और प्रस्तश के गीत गाने के लिए आ गई. It's full of heavenly joy. और आसमानी खुशियों का जिक्र हम पढ़ते हैं. It's great that God fills the women with the Holy Spirit. और ये भी हमें तज़किरा पड़ता है, मिलता है कि खुदा ने एक खातून को रूह कुद्स से भरा. Mary and Elizabeth are full of joy. मरियम और एलिशबा दोनों खुशियों से भरी खातून थी. And then the men are filled with joy. Zechariah starts praising God. और फिर मर्द हजरात ज़िक्रिया तमजीद से भर गया. And even the unborn babies are filled with joy. John the Baptist in the womb. यहाँ तक कि वो बच्चा जो बतन में था, पैदा भी नहीं हुआ,
वो वतन ही में खुशी के मारे उछलने कूदने लग गया। And the angels join in, glory to God in the highest. और फरिश्तों ने साथ दिया और ये कहना शुरू कर दिया, आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। In Matthew's gospel, we learn about the wise men and they're rejoicing in the newborn baby. मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा था कि मजूसी आए और उसको देखकर खुशी के साथ प्रस्तुत करने लगे। Oh, it's so wonderful. In Luke, we read about the shepherds and they're praising God. और हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि चरवाहे खुदावंद की तमजीद खुशी के गीत गाने लग गए। It's as if the whole of creation is praising God. ऐसा लगता है कि सारी मखलूकात खुदा की तमजीद में मशगूल हो गई। At the end of the book of Luke, you find it closes with praise. और मत्ती की इंजील का इख्तिताम भी तमजीद के साथ ही होता है। The disciples go out with Jesus to Bethany. यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ बैतनी गए। This is after the resurrection. यीशु मसीह के जी उठने के बाद बैतनिया गए। And they see him ascend to heaven. और उन्होंने देखा यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए। They go back to Jerusalem with great joy. और खुशी के साथ वो यरूशलेम वापस गए। And they're continually in the temple praising God. और हैकल में खुदावंद की तमजीद करते रहे। Now Luke was a very careful writer. अब जो लूका है वो ऐसा मुसन्नफ है जो बहुत एहतियात के साथ तहरीरो तालीफ और तसनीफ करने वाला है। He checks all the details of what he's writing. और चूंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, वो एक एक तफसील को पहले चेक करता और उसको चेक करने के बाद उसको तहरीर करता। He includes more facts than any other gospel writer. जो लूका ने हकायक बयान किए हैं, वो हकायक ऐसे हैं जो किसी दूसरे इंजील के मुसन्नफ ने हकायक नहीं दिए। His gospel is the longest gospel. और लूका की इंजील सबसे लंबी इंजील है। Luke himself is a doctor. लूका दर हकीकत शख्सी तौर पर एक तबीब था। And we believe that he wasn't a Jew. We believe he was a Gentile. और हमारा यकीन है कि वो जाती तौर पर यहूदी नहीं था, बल्कि गैर कौम से था। And he puts down every little detail. और उसने छोटी छोटी तफसील को एक हकीकत बनाकर पेश किया। And his gospel is for everybody. और लूका की जो इंजील है वो सब कौमों के लिए है। He writes the best Greek of any of the gospel writers. और जो यूनानी जबान का उसने जिक्र किया है, बहुत जो बेहतरीन जबानी है, उसको इसने इस्तेमाल किया है। He's very well educated. वजह ये थी कि वो बहुत पढ़ा लिखा था। But he's got a love for the people who are outside. लेकिन बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोग जो खुदा से दूर थे, उसका दिल उनके लिए मोहब्बत से भरा था। We'd say that he was full of compassion. वो तरस से भरा था। He writes about 13 women who are not mentioned in any other gospel. और लूका ने 13 खातीन का जिक्र किया है जिनका तज़किरा किसी दूसरी इंजील में नहीं मिलता। He's got a great respect for women. नजर आता है कि उसके अंदर खातीन के लिए बहुत इज्जत और वकार था। He appreciates children. वो इवन बच्चों की भी हौसला अफजाई करने वाला था। Who is it written for? किसके लिए लिखा गया? Well, as we said, it's for the Greeks. यही तो हमने बताया है कि ये यूनानी लोगों के लिए इंजील लिखी गई।
His story is in two parts. और उसके जो इंजील हैं उसके दो हिस्से हैं. It's Luke, and he also wrote the Acts of the Apostles. पहले उसने इंजील लिखी और इंजील के बाद दूसरा हिस्सा रसूलों के अमाल की भी उसने तहरीर की. And he writes to someone called Theophilus. और उसने थियोफिलस को ये दोनों जो हिस्से थे, दोनों किताबें थी, उसको मंसूब की. And the word Theophilus means a lover of God. और जो लफ्ज थियोफिलस है उसका मतलब है खुदा का मोहब्बत करने वाला. If you love God, then this is the book for you. अगर आप भी खुदा को प्यार करने और मोहब्बत करने वाले हैं तो लूका की इंजील आपके लिए है. And Luke shows that Christ fulfills all God's plans. और लूका जाहिर करता है कि यीशु मसीह ने खुदा के सारे मंसूबों को मुकम्मल किया. He shows Jesus as a man of prayer. वो ये भी दिखाता है कि यीशु मर्दे दुआ था. He writes about Jesus being baptized and praying at the same time. और वो ये भी जाहिर करता है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के वक्त वो दुआ कर रहा था. When he goes up a mountain and he's transfigured, he's praying. और जब वो पहाड़ पर गया दुआ कर रहा था तो उसकी सूरत बदल गई. On the cross, he prays for those who are crucifying him. और सलीब के ऊपर भी मसीह ने उन लोगों के लिए दुआ की जो उसे मसलूब कर रहे थे. At least 10 times in the gospel, you read about Jesus praying and things happening. और तकरीबन 10 दफा आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने दुआ की और उसके दुआ के जवाब में खुदा ने वही किया जो मसीह ने दुआ की. Luke speaks a lot about the Holy Spirit. जो लूका है रूल कुद्स के हवाला से भी बहुत ज्यादा जिक्र करता है. In Luke chapter 4, he quotes from the Old Testament, "The Spirit of the Lord is upon me." और लूका चौथे बाब में पुराने ऐदनामा से एक हवाला इस्तेमाल करके कहता है खुदा का रूह मुझ पर है. Luke writes wonderful stories, not in any other gospel. और लूका ने जो मसीह की जिंदगी को तहरीर किया है किसी दूसरे ने उस तरह से नहीं किया. Many of us have heard of the Good Samaritan story. हम बहुतों ने नेक सामरी का वाकया पढ़ा होगा. Or the prodigal son. या मुसरफ बेटे. Or the rich man and Lazarus. या जो अमीर आदमी और लाजरस है उसका वाकया इस किताब में पढ़ा होगा. And we know that he went with Paul on his missionary journeys. He accompanied Paul. और हम ये भी पढ़ते हैं कि वो पौलस रसूल के हमरा जब वो अपने मिशनरी दौरों पर था तो वो जाता था. And there's one main key verse which sums up the whole story of Jesus in Luke. और लूका सारी अपने इंजील को इन लफ्जों में बयान कर देता है. And that's Luke chapter 19 verse 10. और लूका 19वें बाब की ये 10वीं आयत है. The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है. Isn't that wonderful? That was Jesus' mission. क्या खूबसूरत है कि यीशु मसीह के आने का मिशन और मकसद क्या था. I think that should be my mission. और मैं सोचता हूं मेरी जिंदगी का भी यही मकसद और मिशन होना चाहिए. That should be your mission. आपकी जिंदगी का भी यही मिशन होना जरूर है कि हम ढूंढें और तलाश करें. Let's go and preach the gospel and bring them in. कि हम इंजील सुनाएं और लोगों को मसीह के पास लाएं. Oh, amen. So now we're on to our last gospel, the Gospel of John. और अब हम लूका की इंजील के बाद
आखिरी इंजील जो यूहन्ना की इंजील है, हम उस तक पहुंचते हैं। Thank God the interpreter's still alive. शुक्र है कि तर्जमान अभी जिंदा है। He's doing a good job. थैंक यू। John was a wonderful gospel. अब यूहन्ना की जो इंजील है वो भी बहुत ही जबरदस्त इंजील है। He shows Jesus is God. और यूहन्ना जाहिर करता है कि यीशु मसीह खुदावंद है। He's God come in the flesh. खुदा जो कलमे के तौर पर मुजस्सम होकर आ गया। God became a man to save us from sin. खुदा इंसान बन गया ताकि हमें गुनाह से छुड़ाए। All who believe in him, they've got the right to become children of God. और जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। There's one fascinating thing about John's gospel. जो यूहन्ना की इंजील है उसके ताल्लुक से एक खसूसी और पुरजोश जो बात है वो ये है, And I hope you will study this for yourself. और मैं सोचता हूं कि आप खुद भी सारी इंजील को पढ़ेंगे। The number 7 keeps occurring again and again and again. एक खसूसी मुतासर करने वाली चीज जो इस इंजील में मिलती है वो 7 का हिंदसा है जो बार 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 हमें नजर आता है। And number 7 in the Bible is the number of perfection or completeness. जो बाइबल मुकद्दस में 7 का हिंदसा है वो कामलियत का हिंदसा है। There were 7 days of creation. 7 दिनों में खुदा ने तख्लीक की। 7 days in the week. हफ्ते के 7 दिन। 7 colors in the rainbow. जो कौसे कज़ा उसके 7 रंग। 7 main music notes. 7 मौसीकी की सुरें। 7 continents. 7 बरे आजम। 7 hills in Istanbul. इस्तांबुल में 7 पहाड़ियां। 7 hills in Rome. रोम में 7 पहाड़ियां। 7 hills in Jerusalem. यरूशलेम में 7 पहाड़ियां। There was 7 wonders of the ancient world. और कदीम दुनिया के 7 अजूबे। The number 7 is used over 700 times in the Bible. बाइबल मुकद्दस में 7 का हिंसा 700 दफा इस्तेमाल हुआ है। 7 is the number of completeness, whether it's physical or spiritual. जो 7 का हिंसा है वो कामलियत का हिंसा है, वो रूहानी तौर पर भी या तबई तौर पर भी हो सकता है। When Jesus spoke from the cross, he spoke 7 times. यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर 7 कलमात कहे। The word created occurs 7 times in the beginning of Genesis. और पैदाइश की किताब में 7 दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ। The Jewish Sabbath is on the 7th day. और यहूदियों का सबत 7वें दिन, हफ्ते के 7वें दिन। John writes about the 7 I am statements of Christ. और मसीह के जो 7 यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, 7 मैं हूं का जिक्र करता है। For example, I am the good shepherd. मिसाल के तौर पर यूहन्ना कहता है I'm the अच्छा way, the चरवाहा truth. मैं हूं। मसीह ने कहा, I'm the way, the truth, and the life. मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। I'm the bread of life. जिंदगी की रोटी मैं हूं। So that's a great subject for you to study. और ये वो सबक है जो आप याद कर सकते हैं और आप इसका और ज्यादा मुताला कर सकते हैं। In John's gospel, Jesus did 7 miracles which were signs.
और यूहन्ना की इंजील में 7 वो मोजज़ात यीशु मसीह ने किए जो निशान थे। In John's Gospel, 7 witnesses testify or speak of Christ. और यूहन्ना की इंजील में 7 गवाहों का जिक्र पढ़ते हैं जो मसीह की गवाही देते हैं। Jesus had 7 life-changing conversations with people in John's Gospel. यूहन्ना की इंजील में 7 अहम लोगों से मसीह ने कलाम किया जिससे उनकी जिंदगियां बदल गई। For example, in John chapter 3, he spoke with Nicodemus. मिसाल के तौर पर यूहन्ना 3 बाब में निकोदेमुस के साथ मसीह ने गुफ्तार की। In John chapter 4, he spoke with the Samaritan woman at the well. चौथी आयत में 4 बाब में यूहन्ना के हम सामरी औरत के साथ मसीह की गुफ्तार और उसका कलाम पढ़ते हैं। He wrote about 7 women who met the Lord Jesus. और यूहन्ना 7 खातिन का जिक्र करता है जो यीशु मसीह को मिली। He writes about 7 questions Pontius Pilate asked Jesus. पैंतुस पिलातुस ने जो 7 सवाल मसीह के ताल्लुक से पूछे उसका भी जिक्र है। Isn't that interesting? So you've got plenty to think about now and to study आपको yourself. बहुत ज्यादा सोचने को मिल गया है। 7 कई 7 चीजों को सोचने का आपको मौका मिलेगा। John wrote at the very end of his life, AD 85 to 95. और यूहन्ना ने अपनी जिंदगी के इख्तितामी दिनों में जो कि 85 से 90 बाद अज़ मसीह था उसमें अपनी इंजील को तहरीर किया। He was the only apostle still alive. उस वक्त सिर्फ वो एक ही रसूल था जो अभी जिंदा था। He wrote other books, 1st, 2nd, and 3rd John. उसने और किताबें भी लिखी, पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना का खत। He also wrote the book of Revelation. फिर उसने मुकाशफा की भी किताब लिखी। He knew Jesus personally. वो यीशु मसीह को जाती तौर पर जानता था। And he was probably the only person living who'd walked and talked with Jesus. और उस वक्त सिर्फ वो आखिरी रसूल था जो यीशु मसीह के साथ चलता फिरता गुफ्तार करता था। When John was writing, Jerusalem had been destroyed by the Romans. और जब यीशु मसीह ने वो लिखता है, जब यीशु मसीह ने ये कहा कि यरूशलेम तबाह होगा, All the other apostles had been killed. उस वक्त तक बाकी सारे रसूल शहीद हो चुके थे। Thousands of Christians had been martyred. और हजारों के हिसाब से मसीही शहादत नोश कर चुके थे। But God left John behind there as a witness. लेकिन खुदा ने यूहन्ना को एक गवाह के तौर पर जिंदा रखा। A witness to the greatest life that ever lived. एक ऐसा गवाह जो अजीम जिंदगी के लिए गवाही देने के लिए जिंदा था। There's a wonderful verse in John chapter 20 verse 31. यूहन्ना की इंजील और उसके 20वें बाब की 31वीं आयत बहुत काबिल जिक्र है। It says, I write these things that you may believe that Jesus is the Christ. और वो लिखता है कि मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम जानो कि यीशु मसीह खुदावंद है। He's the Son of God, and believing you may have life in his name. और वो खुदा का बेटा है और उस पर ईमान लाने के बायस तुम जिंदगी पाओ। We can have life in his name today. के नाम के वसीला से आज भी हम जिंदगी पा सकते हैं। One of my friends just read John's Gospel and he was born again. मेरा एक दोस्त था जिसने सिर्फ यूहन्ना की इंजील पढ़ी और पढ़ते ही वो यीशु का पैरोकार बन गया।
My friend just read it, believed it, received it, and was born from above. और उसने इस इंजील को पढ़ा, उस पर ईमान लाया और ईमान लाकर मसीह का पैरोकार बन गया. John's words were the last words of the Bible. और जो यूहन्ना के अल्फाज हैं वो बाइबल मुकद्दस के आखिरी अल्फाज हैं. After 1500 years, John brings the Bible to an end, to a close. और 15 साल के बाद वो बाइबल मुकद्दस को का इख्तिताम के आखिरी जो कलमात है और आखिरी बातें हैं वो उनको तस्नीफ करता है. John's gospel is very special. यूहन्ना की इंजील बहुत खास इंजील है. It begins right back in eternity. और वो शुरुआत अबदियत से अपनी इंजील का करता है. In John chapter 1, Christ, the word, is with God. और वो पहले बाब में कहता है कि कलाम खुदा के साथ था. The word is God. और कलाम खुदा है. God made everything by the word. और उसने हर चीज को अपने कलाम के वसीला से पैदा किया. The word came from heaven in the person of Jesus Christ. और कलाम मुजस्सम हुआ और मसीह के वसीला से मसीह वो बन गया. The other gospels tell us what Jesus did. जो बाकी अनाजील हैं वो ये जिक्र करती हैं कि मसीह ने क्या किया. But John tells us about who Jesus is. लेकिन यूहन्ना अपनी इंजील में जिक्र करता है कि दर हकीकत मसीह कौन है. His inner life. उसकी हकीकी जिंदगी का वो जिक्र करता है. He's called the Logos of God. वो मसीह को खुदा का लोगास कहता है. That can be translated as the reason for everything. इसका तर्जमा ये किया जा सकता है हर चीज की कोई वजह, उसकी हैयत. Jesus shows the Father. यीशु बाप को जाहिर करता है. The Son of God speaks of love and union with the Father. और खुदा का बेटा चूंकि खुदा के साथ एक है वो खुदा का जिक्र करता है. He's like a perfectly clear window, and through the window we can see God the Father. और यूहन्ना की इंजील एक ऐसी खिड़की की तरह है जिसको खोलकर हम पूरे तौर पर खुदा की जात के मुकाशवे को सफाई से देख सकते हैं. In the beginning was the Word. इब्तिदा में कलाम था. And the Word was with God. और कलाम खुदा के साथ था. And the Word was God himself. और कलाम खुद खुदा था. John gives the reason why Jesus came. और यूहन्ना वजह जाहिर करता है कि क्यों यीशु मसीह दुनिया में आए. In John chapter 10 verse 10. और यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है. The thief comes to steal and to destroy. दुश्मन आता चुराने और हलाक करने. I've come that you might have life. लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ. And have it abundantly. और कसरत की जिंदगी पाओ. You can have abundant life today. आज आप मसीह से कसरत की जिंदगी का तजुर्बा पा सकते हैं. Read John's gospel and you'll get abundant life. यूहन्ना की इंजील को पढ़िए और कसरत की जिंदगी पाइए. Just believe it and receive it. इस पर ईमान लाइए और ले लीजिए यीशु मसीह से कसरत की जिंदगी को. Just let me pray. I'm so excited about this. I'm so मैं इस इंजील के ताल्लुक से इस कदर पुरजोश हूं कि मैं दुआ करना चाहता हूं. Thank you for your wonderful word, Lord. ऐ खुदावन तेरे अजीब और अजीम कलाम के लिए तेरा शुक्र. Thank you for Matthew, Mark, Luke and John. ऐ खुदावन मत्ती, मरकस, लूका
यूहन्ना के लिए तेरा शुक्र। What a feast we have in your word, Lord. तेरे कलाम में कैसी ज़ियाफत हमें करने को मिलती है। But we love the God who gave the word. लेकिन हम उस खुदा से प्यार करते हैं जिसने ये कलाम नाजिल We किया, love the living word who came from heaven. और जिंदा कलाम जो दुनिया में आ गया। We just praise you today. ऐ खुदावंद, हम तेरी तमजीद आज करते हैं। Thank you for your blessed spirit you sent into our hearts, हमारे Lord. दिलों में मुबारक रूह जो तूने डाल दिया है उसके लिए तेरा शुक्र हो। We thank you in Jesus' name. यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। Amen. आमीन। Amen. God Amen. bless you. Thank you. Oh, what a powerful, what a powerful. थैंक यू जीसस। Hallelujah. Hallelujah. In about 1 hour, 10 minutes, 1 hour, roughly speaking, we learn 4 gospel. तकरीबन 1 घंटे या उससे जरा थोड़ा, 1 घंटे में 4 अनाजील को हमने पढ़ा, हमने सीखा है। And with the translation. और तर्जमे के साथ। So in 30 minutes, Keith has given us the survey of 4 gospel. कीथ ने 4 अनाजील का जायजा हमें आधे घंटे में दे दिया है। Keith was telling us about Mark express train. Now we saw express train in Keith. कीथ ने बताया कि मरकस की इंजील एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है, लेकिन आज तो हमने कीथ को एक्सप्रेस ट्रेन देखा है। That's like really a skill of a great teacher. एक अजीम मुअल्लिम की काबिलियत यही है। In such a short time, giving so many, comprehensive information, solid. थोड़े ही वक्त में एक आला उस्ताद मुस्तनद बातें सिखा जाता है। 4 gospel. 4 अनाजील। We thank God we have 4 gospel. हम शुक्र करते हैं हमारे हाथों में 4 अनाजील है। According to the Jewish law, the matter will be settled by the witness of 2 and 3. यहूदियों के मुताबिक कोई मामला भी अदालत में 2 गवाहों या 3 गवाहों से वो होगा। We don't have 2 or 3. हमारे पास 2 गवाह नहीं, 3 गवाह भी नहीं। We have 4. हमारे पास 4 गवाह हैं जिसको खड़ा कर सकते हैं अदालत में। Hallelujah. हालेलुया। That's the truth of God's word. That's the ये beauty है of God's word. खुदा के कलाम की सच्चाइयां। Keith mentioned very beautiful point here. Mark is the first gospel written. That's what the theologian believe. कीथ ने बताया कि इल्म इलाहियात के माहिरीन कहते हैं कि मरकस की इंजील पहली इंजील है जो लिखी गई। But we have Matthew, the first gospel, and then Mark, and then Luke, and then John. लेकिन नए ऐदनामा में जो तरतीब हम देखते हैं, पहले मरकस, पहले मत्ती, फिर मरकस और उसके बाद लूका और यूहन्ना। So Matthew is a bridge between Old Testament and the New Testament. नए ऐदनामा में तरतीब मत्ती से शुरू होती है। वजह यह है कि मत्ती पुराने और नए ऐदनामा के दरमियान पुल है। What is the lesson here? यहाँ पर जो सबक हम सीखते हैं वो क्या है? There is order in God's word. Amen. खुदा के कलाम में तरतीब पाई जाती है।
Yesterday, I was preaching about how to handle confusion. कल मैं कलाम सुना रहा था और ये सिखा रहा था और मैं कलाम ये सुना रहा था कि कैसे जो अबतरी हमारे ज़हनों ख्यालों में होती है हम कैसे उसका हल ढूंढ सकते हैं. And the Bible verse I used was 1 Corinthians chapter 14 and verse number 33. और पहला कुरिन्थियों उसके 14वें बाब की 31वीं आयत का हवाला मैंने इस्तेमाल किया. The Bible says God is not a God of disorder or confusion, but God of peace. कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, लिखा है कि खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि तरतीब का खुदा है. I have said many times and I will keep on saying until the last breath of my life. मैंने बहुत दफा ये कहा है और जिंदगी के आखिर तक भी, आखिरी दम तक ये बात कहता रहूंगा. There is a great, amazing order in God's word. Amen. खुदा के कलाम में जबरदस्त तरतीब पाई जाती है. No book in the world has such order. दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें ऐसी इलाही तरतीब पाई जाए. Bible is so orderly book. बाइबल मुकद्दस बहुत बातरतीब कलामे मुकद्दस है. Because the God of the Bible is a God of order. वजह यह है कि कलाम का खुदा चूंकि तरतीब का खुदा है. So Matthew is the king. मत्ती जाहिर करता है यीशु बादशाह. Then there are so many Old Testament prophecies mentioned and the fulfillment of those और फिर prophecies. बहुत सी नबूवतें और उन नबूवतों की तकमील हम मत्ती में देखते हैं. And if we request Keith to teach us, he will teach us for hours about this gospel. और अगर हम कीत को कहें वो तो घंटों घंटे इसके ऊपर तालीम दे सकता है. Then in Mark is the suffering servant. और मरकस की इंजील दुख उठाने वाला खादम. Now in Matthew we find genealogy. मत्ती की इंजील में हम नसबनामा पढ़ते हैं. Where that king come from? The ये background. बादशाह कहां से आया, उसका नसबनामा क्या है. It goes back to Abraham. और ये बादशाह कहां से आया, उसका जिक्र अब्राहम तक जाता है. It goes back to King David. और दाऊद बादशाह तक उसका नसबनामा जाता है. Mark, a servant. Jesus, a servant. मरकस जाहिर करता है यीशु दुख उठाने वाला लेकिन खादम. No genealogy. कोई नसबनामा उसने तहरीर नहीं किया. Because people are not concerned about the genealogy of a servant. क्योंकि लोग खादम के नसबनामे में कोई दिलचस्पी नहीं रखते. They are just concerned about the work. उनको तो खादम की खिदमत चाहिए बस. Then we come to Luke. और फिर हम लूका पर आते हैं. Luke mentioned genealogy. अब लूका भी नसबनामों का जिक्र करता है. And the genealogies go back all the way to Adam. और वो तो नसबनामों को खींचकर वो आदम तक ले जाता है. Thank you, Jesus. Son of man. और जाहिर करता है इब्ने खुदा का बेटा. Perfect man. Amen. कामिल खुदा. That's what people were looking for, Yes. as Keith has taught us. और जैसे कीत ने बताया कि लोग किसी कामिल इंसान के मुतलाशी थे और लूका ने मसीह को कामिल इंसान जाहिर किया. In the Gospel of John, और यूहन्ना की इंजील में no genealogy. कोई नसबनामा नहीं, Because he's God. क्योंकि वो तो खुदा है. God doesn't have any beginning. खुदा का कोई शुरुआत नहीं. That God, you cannot say God was born at that time. कौन He's कह the son सकता है of so कि and so. खुदा उस वक्त पैदा हुआ था.
खुदा का तो कोई शुरुआत नहीं, उसकी कोई इब्तदा नहीं। Do you see the beauty of God's word? खुदा के कलाम का हुस्न आप देख रहे हैं? Oh, thank you, Jesus. Amen. तेरा शुक्र। Amen. Oh, God's word is so amazing. Amen. खुदा का Amen. कलाम Amen. बहुत जलाली और जमील और हुसीन है। If you have any question, you can ask briefly and precisely. अगर आपका कोई सवाल है तो बहुत इख्तिसार के साथ पूछ सकते हैं। Anything that God touched you, अगर किसी खुसूसी बात ने आपको छुआ है, you can share. आप शेयर कर सकते हैं। And I want that all of you really give a clap offering to Keith. और मैं कहूंगा कि सब जोर के साथ खुदा के खादम के लिए ताली बजाएं। Thank you so much, Keith. Thank you. Thank you. Thank you. Where is everybody? I don't hear any clapping, any Right. appreciation. They're on mute. और सारे कितने चले गए, सबका म्यूट लग रहा है। खुदा के खादम में ताली बजाने के लिए कहा था। Let's applaud for the wonderful teaching we heard. कैसी जबरदस्त तालीम हमने पाई है, उसके लिए हम खुदा के जलाल के लिए, खुदा के खादम की तारीफ के लिए हम ताली बजा सकते हैं। I think over there the rapture has taken place. It looks like we are left out. We are left behind. Left behind. Oh no. Oh, God bless you. Okay. Anybody? I'm really concerned about Keith. I'm really concerned about. I don't hear anything. Rapture has taken place. Okay, God bless you. All of them are mute. They are just listening. Yeah, They don't want to say anything. yeah. They were so attentive. Oh. इस सर एक टेस्टिमनी है। सर बाइबल कॉलेज में जो तालीमात दी गई सर की ने जो टीचिंग्स दी, उसका रिजल्ट कल हमने पानी के 10 बपतिस्मे दिए और 5 रूह कुदुस के बपतिस्मे हुए। Well, we want to give a testimony that you've been teaching us, and the fruit of your teaching is yesterday we baptized 10 people in water. और 5 लोगों को रूह कुदुस का बपतिस्मा हुआ। And 5 people got baptism of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Wow. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Anything else you want to share? Okay. Praise God. Here are, God bless you, Pastor Keith, for this beautiful message. Here we got that in our chat. And great, stay blessed always. God bless you. Great teaching. Hallelujah. Praise God. Thank you. Wonderful. So if you don't have any question or you don't have anything to share, then I request Pastor Khalid to close us in prayer. Amen. Let's pray. ऐ खुदावन, तेरे कलमे और तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादम और उसकी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। Amen. तेरे मुकद्दसों और उनके खुले दिलों के लिए शुक्र करते हैं जो तेरे कलाम के लिए खुले हैं। Hallelujah. फजल दे Thank you, Jesus. तेरे बच्चे
तेरे कलाम पर इस्तग़राक़ के लिए वक्त निकालें, ताकि ये सिर्फ कलाम मालूमात नहीं, बल्कि ये कलाम मालूमात से बढ़कर मुकाशफा बन जाए इनके दिलों में। आमीन। छू ले अपने बच्चों को, तेरे खादमों पर तेरा हाथ हो, मसीह की खातिर मांगता हूं, आमीन। Amen. Amen. Khalid was praying that, Lord, this information would become a revelation. Amen. For all the students, and bless them and bless your servant. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So God bless you. Bless you. See you. I want to share with you one thing that's very important. एक खास बात भाई बताना चाहते हैं. It's about the calendar we have. And I believe this will be really helpful for you. जो अगले दिनों के बारे तफसीलात हैं तालीम की, वो मैं बताना चाहूंगा और ये इससे आपकी मदद होगी. Okay, let me share screen with you. Here you can see we have all the schedule. ये सारा स्केड्यूल अक्टूबर का जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा. Pastor Nadeem has this schedule. Shakib, Jared. Yes. Yes. Pastor Shakib के पास, Pastor Nadeem के पास और Pastor Jared के पास ये सारा स्केड्यूल है. Now, after 4 gospel, we will have Acts and Romans. और 4 अनाजील के बाद 25 तारीख को हम पढ़ेंगे अमाल की किताब और रोमियो का खत. And then we have 1st and 2nd Corinthians and Galatians. फिर उसके बाद हम पहले नवंबर को पहला और दूसरा करंथियों का खत और गलतियों का खत. Then we have Ephesians, Philippians, Colossians and Philemon. फिर उसके बाद हम इफिसियों, फिलिपियों, कुलसियों और का खत हम पढ़ेंगे. These epistles are also called prison epistles. इन खतूत को हम कैदी खत भी कहते हैं. Then we have 1st and 2nd Thessalonians. फिर उसके बाद पहला और दूसरा थेसलनिकियों. Then we have 1st and 2nd Timothy and Titus. That's also called pastoral epistle. फिर पहला दूसरा तिमोथियस और तीतस का खत जिसको हम पासबानी खतूत कहते हैं. Then we have Hebrews and James. फिर उसके बाद इब्रानियों और याकूब का खत. Then on December 6th we have 1st and 2nd Peter, and then 1st, 2nd and 3rd John. फिर दिसंबर 6 को हम पहला और दूसरा पतरस और पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना का खत पढ़ेंगे. Then on the 13th we will have Jude and the book of Revelation. और फिर 13 दिसंबर को हम यहूदा और मुकाशफा का खत मुकम्मल करेंगे. December 13 will be the last day before Christmas. और दिसंबर 13 क्रिसमस से पहले का आखिरी हमारा स्केड्यूल होगा. And we are really looking forward to that, to hear wonderful teaching from Keith. और कीत खुदा के खादम से बहुत बाबरकत तालीम पाने के लिए हम बहुत पुरजोश हैं. Amen. Thank you very much, Keith. Thank you. Thank you. Do you want to say something? No, that's great. Praise You- God. you- Praise God. Praise God. Amen. So God bless you. See you next time. See Thank you next you. time. God bless you. Bless you. Okay. Bye. Bye. Bye.